लेक्चर इससे पहले हो गए हैं? 2 लेक्चर्स हुए हैं सर। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं किधर थे। अभी रमज़ान का स्टिल आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी स्केड्यूल। यूजुअल रूटीन में क्लासें चलेंगी अभी। ये देखिए, ये आपका आ गया। पीरियोडिक मैट्रिक्स कर लिया था हमने, आइडेम्पोटेंट कह रहे हैं ना आप। और लेट अस सी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स डेफिनेशन। A square matrix A is said to be a idempotent matrix if A square is equal to A. A must be a square matrix. या आप ब्रैकेट में आगे लिखेंगे A must be a square matrix, or you will write down the definition as a square matrix A is said to be an idempotent matrix if A square is equal to A. That is, in a periodic matrix, if K is equal to 1, then it becomes idempotent. Because K is equal to 1, so A power K plus 1 will be equal to A1 plus 1, A square is equal to A. So simple definition है idempotent की. Then comes the definition of a nilpotent matrix. A square matrix A for which AP is equal to 0, P being positive integer. 0 means null matrix of the same order. AP is equal to 0, where P being positive integer is called nilpotent matrix. If P is the least positive integer for which AP is equal to 0, then A is said to be a nilpotent of nilpotency index P. So P is the least positive integer and it is known as the nilpotency index. So always keep in mind what is nilpotency index, where P is the least positive integer for which AP is equal to O, that is null matrix of the same order, then P is known as the nilpotency index and the matrix A is called nilpotent matrix. Now let us consider example 6a. A square is equal to A is to A, that is A is multiplied by itself. So multiplication give us, देखिए, 4 plus 2 minus 4. 4 plus 2 first row first column, then second row first column, then third row first column. As I have already told you, after multiplication you will give the details. If I am not giving here the detail, but you have to give the details while doing this question or this type of questions in the paper. 2 is to 2 plus minus 2 is to minus 1 plus minus 4 is to 1. Then after simplification you get 2. Similarly, minus 1 into 2 plus 3 is to minus 1 plus 4 is to 1. तो ये बन जाएगा -2 -3 plus 4 -5 plus 4, that will be equal to -1. Similarly, you can get all the other entries and you get a matrix which is again A. So A square is equal to A, so A is an idempotent matrix. I vowel, so there is essential to put n before idempotent. Hence, A is an idempotent matrix. Example 7 is A is equal to this, then A square. A is to A is equal to 0, 0, 0, 3, 3, 9, -1, -1, -3. You can check yourself. You will give the detail of all that. Again, listen to me, please. If I am not giving the detail of such minor things, but in the paper you have to give the detail. कौन सी detail? After multiplication you will write in a first step
1 is to 1 plus 1 is to 5 plus 3 is to minus 2, then 1 plus 5 minus 6, और वो बनेगा 6 minus 6 0. So similarly you will give the detail of each entry and you will get 0 0 0 3 3 9 minus 1 minus 1 minus 3. Then again we multiplied it by a. So then a3 is equal to a square is to a. This is your a square and this is your a 1 1 3 5 2 6 minus 2. Then again multiplying first row first column. As the first row consists of all the zero entries, तो ये zero result आ गया. फिर आप लिखेंगे 3 plus 3 is to 5 plus 9 into minus 2. 3 plus 15 minus 18. So it will come out 18 minus 18, 0. Similarly, all other entries, after getting the detail, we see that each entry reduces to 0. So it becomes a null matrix of the same order consisting of 3 rows, 3 columns, and all are zeros. Hence, it is matrix O. That is a null matrix of order 3. So it means that A is a nilpotent matrix. A is a nilpotent matrix and its nilpotency index is 3 because the value of P is here 3. P की वैल्यू यहाँ पर 3 है. P is equal to 3, hence it is a nilpotent matrix of nilpotency index 3. सर P की वैल्यू कहाँ लिखी हुई है? Then comes the P की समझ नहीं आ रही आपको? यस सर. देखिए हमने पीछे डिफाइन क्या किया है. प्लीज गो आफ्टर द डेफिनेशन. हमने कहा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A will be nilpotent if AP is equal to 0. तो यहाँ जब A3 आपका 0 मैट्रिक्स आ गया, नल मैट्रिक्स, तो P की वैल्यू क्या हो गई इधर? 3. P is equal to 3. तो फिर nilpotency इंडेक्स क्या हो गया? 3. nilpotency इंडेक्स क्या होता है? P. कब? When AP is equal to 0. Now here A3 is equal to 0. So value of P here is 3. Hence the nilpotency index is 3 here. Okay. Now let us see definition involutory matrix. A square matrix A such that A square is equal to I. I mean identity matrix of the same order. Then it is called an involutory matrix. So A dot A is equal to A square is equal to I, where I is the identity matrix, then it will be known as involutory matrix. Let us see A is this given. Example 8 is about involutory matrix. A is 1 minus 1 0 0 minus 1 0 0 0 1. We multiply A by A, we get A square. And we write it as A is to A. So first row, first column, 1 is to 1 minus 1 is to 0 plus 0 is to 0. So you will be left with 1. Here 0 is to 1 minus 1 is to 0 plus 0 is to 0, 0. Then 0 is to 1 plus 0 is to 1 plus 1 is to 0, again 0. So first column becomes 1 0 0. Then similarly, after multiplication of all the 3 rows one by one with the column 2 of the second determinant, which is the same, minus 1 0. Fix this column and rotate all the 3 rows and you will get 0 1 0 column. And then the last column after multiplication you will get 0 0 1. So this matrix clearly we see that is the identity matrix. And as its order is 3, so we write down it as I3. I mean identity matrix or unit matrix. 3 mean 3 shows its order. So A square is equal to I3. तो फिर ये क्या हो गया? It is the involutory matrix. It is an involutory matrix. Then comes the next definition, symmetric matrix.
Now, what is a symmetric matrix? A square matrix A is called symmetric matrix if AT is equal to A. A square matrix A is called symmetric matrix if AT is equal to A. What is AT is here the transpose of A. So if a matrix become equal to its transpose, then that matrix is called symmetric matrix. Then skew symmetric matrix. What is a skew symmetric? Definition of skew symmetric is a square matrix A for which AT is equal to minus A. यानी माइनस आप कॉमन ले लें तो फिर A के बराबर आए. Taking from each entry negative sign as common, then it becomes the same matrix A, then it will be known as the skew symmetric matrix, skew symmetric. Note the difference between symmetric and skew symmetric. Now example 9 is about the symmetric matrix. Matrix A is given as A 1, 2, 3, second row 2, 4, minus 3, third row 3, minus 3, 6. Now we take its transpose AT. First column 1, 2, 3, we make it, sorry, first row is 1, 2, 3, we make it first column 1, 2, 3. 2, 4, minus 3 is the second row, we make from it the second column of AT, 2, 4, minus 3. Then third column become, third row become the third column. So we see that there is no change in the matrix. AT is equal to A. Hence, it is a symmetric matrix. Now the next example is about skew symmetric. A is equal to 0, minus 2, 3, 2, 0, 4, minus 3, minus 4, 0. We take its transpose. First row will become the first column. First row is 0, minus 2, 3. It will become the first column 0, minus 2, 3. Then 2, 0, 4. It will become the column 2, 0, 4. Then the third row minus 3, minus 4, 0. It will become the third column minus 3, minus 4, 0. Now it is not equal to A. If we take negative sign common, then all the entries inside will change their sign, So it will become as 0, minus 2, 3, 2, 0, 4, minus 3, minus 4, 0. So now we see that it is a matrix A. So it will become equal to minus A. So AT is equal to minus A. Therefore, A is known as, or simply A is called a skew symmetric matrix. A skew symmetric matrix. Then comes the next definition, conjugate of a matrix. ये conjugate क्या होता है भाई? Conjugate आप पहले have you listened before? What is conjugate? साइन चेंज होते हैं सर इसमें. Conjugate number कैसे sign change होता है? कॉम्प्लेक्स टू नंबर का सर कॉम्प्लेक्स नंबर का. टू का माइनस 2 हो जाएगा conjugate? No, not at all. सर जी कॉम्प्लेक्स जी नंबर के साथ. कॉम्प्लेक्स जी नंबर you are right. Complex number में भी किसका साइन चेंज होगा complex number में? आयोटा का Imaginary part. Imaginary part. सर जो Just इमेजिनरी listen to पार्ट होगा me. ना उसका. Imaginary part का साइन चेंज हो जाएगा. Imaginary part का साइन चेंज हो जाएगा. The conjugate of A plus iota B is equal to A minus iota B and vice versa. The conjugate of A minus iota B is A plus iota B. So you know already then what is the conjugate of a matrix? Let Aij be a matrix with entries as a complex number. जरूरी नहीं कि all the entries, some entries are from complex numbers. Then the conjugate of A is denoted by A bar. Then the conjugate of A is denoted by A bar. A के ऊपर आप
छोटी सी डैश डाल दें ए बार, तो इट इज नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ ए। यानी हर जो कॉम्प्लेक्स एंट्री है उसकी जगह उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। यही वजह है कि मैंने ए आई जे बार लिखा है, एंड इट इज ए मैट्रिक्स obtained by replacing each complex entry by its conjugate। कॉम्प्लेक्स एंट्री मीन के कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एंट्री दी है, आगे मैंने इसकी वजाहत कर दी है, डिटेल दे दी है। विद इन ब्रैकेट्स आई एम गिविंग द डिटेल्स फॉर यू पीपल that if z is equal to a plus iota b, then the conjugate of z is a minus iota b। Now remember that if a plus then z bar is a conjugate of z। यानी किसी भी मैट्रिक्स Z में if the all the entries consisting of complex numbers or complex entries are replaced by their conjugate numbers, conjugate complex numbers, then that become the conjugate of the matrix, A, and it is denoted by A bar। Then the definition comes Hermitian matrix। Hermitian matrix, a square matrix capital A is called Hermitian matrix if A bar T is equal to A। यानी पहले उसका आप take the conjugate of that given matrix and then take the transpose of A, and if it becomes that the same matrix which is given in the start, that is A bar T is equal to A, then it is called the Hermitian matrix। And in the similar way we can define skew Hermitian। When A bar T becomes minus A with the negative sign, it becomes A, that is A bar T is equal to minus A, then it is called a skew Hermitian matrix। This is the definition of a skew Hermitian matrix। A square matrix A is called जी 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 सर ये जो नोट लिखा हुआ है, रिमेंबर दैट इफ z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, देन z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू a माइनस a। ये दोबारा a किधर से आया? आप किसकी बात कर रहे हो? सर ये नोट जो लिखा हुआ है ना, इसमें जो z का कॉन्जुगेट लिया है। ओ प्लीज डू करेक्ट इट, ये इधर ये मैं दूसरी क्लासों में करेक्शन करवा चुका हूँ, ये ए नहीं आएगा, ठीक है? इसको डिलीट कर दें, इसको क्रॉस कर दें, ये मेरे से गलती से लिखा गया है नोट्सों में। इधर आएगा ए माइनस योटा बी सिंपली। ये ऊपर आप इसको देखो ना, इधर ठीक लिखा हुआ है। इफ z इज इक्वल टू a प्लस योटा बी, देन द कॉन्जुगेट ऑफ z इज z बार a माइनस योटा बी। आप छोड़ दो नोट्स को, आप विद इन ब्रैकेट्स जो है उसको लो। ऐसी अगर कोई एरर हो तो बेटा जी उसको खुद दुरुस्त कर लेते हैं, क्योंकि ये साफ जाहिर है, नज़र आ रहा है कि इधर ए नहीं होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई तो ए हो नहीं रहा, तो ये दिस विल बी इक्वल टू ए माइनस योटा। ओके, तो now let us take the example of Hermitian and skew Hermitian। Example 10 is about Hermitian। 1 1 minus iota, 2 1 plus iota, 3 iota, 2 minus iota 0। Now first take the a bar। तो a bar आपका कैसे आएगा? This a minus iota will be changed into a plus iota, and this a plus iota will changed into a 1 minus iota, and this iota will become minus iota, and this minus iota will become iota। So we get a bar like this: 1 1 plus iota, 2 1 minus iota, 3 minus iota, 2 iota, 0। So now take the transpose of it. First row, first column, second row, second column, third row, 2 iota 0 will become the third column, 2 iota 0। So we see that it is equal to A, it is equal to A। So it becomes the definition of
Hermitian matrix. As A bar T is equal to A, so A is Hermitian matrix. Now this is the example of skew Hermitian. Very simple example. Example 11, iota 1 minus iota 2 minus 1 minus iota 3 iota minus 2 iota 0. And we want to take a bar. So change the sign of the imaginary part. Where there is an imaginary part, it will become minus iota. It 1 plus iota, minus 1 plus iota, minus 3 iota, minus iota, minus 2 minus iota 0. तो ये आपका नीचे मैंने लिखा हुआ है पेज 28 पे ए बार. Now take the A bar transpose. So rows will become columns and columns will become the rows. इसके rows को column बना ले या column को row बना ले, it is all the same. So first row will become first column, second row second column, third row third column. Now take the negative sign common from all the entries. तो माइनस आपका आ गया. जब माइनस आपका आ जाएगा तो आप देखोगे कि अंदर आपका ये प्लस योटा बन गया, ये 1 माइनस योटा बन गया, ये +2 बन गया, ये -1 माइनस योटा. तो यू गेट दिस मैट्रिक्स. इट इज अगेन a matrix A. So you will write minus A as A bar T is minus A. Hence A is a skew Hermitian matrix. Hence A is a skew Hermitian matrix. Then comes example 12. Show that for any square matrix A plus AT is symmetric and A minus AT is skew symmetric. Example हमें बता रही है कि what we have to prove. We have to show that for any square matrix A plus AT will always a symmetric matrix and A minus AT will be a skew symmetric matrix. We have to show that for any square matrix A, if we add transpose of it to this matrix A, that is we take A plus AT, then definitely it will be a symmetric matrix. And if we take the difference of these two matrices, that is A minus A transpose, so then it will become a skew symmetric matrix. Now with the help of certain rules which we have already gone through, the first rule is A plus minus B T is equal to AT plus minus BT, and the second rule is transpose of a transpose is the matrix itself. ATT is equal to A. So now we see that. Let us take C matrix equal to A plus AT. Now if CT is equal to C, then we say that C is a symmetric matrix, and when C is a symmetric matrix, then we will call or we will say that A plus AT is symmetric. So taking transpose on both sides, the transpose of C is CT and transpose of A plus AT whole T. फिर अलग-अलग take separately the transpose of each, it will become AT plus ATT. So it will become AT plus A, because transpose of a transpose is the matrix itself. And we see that AT plus A is equal to C. As CT is equal to C, hence C is a symmetric matrix. Therefore, A plus AT is a symmetric matrix. ठीक है जी, समझ आ रही है बात की. A plus AT is a symmetric matrix.
ये आपको फॉर्मेशन भी बताई गई है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरह बनाया जाता है, हाउ टू मेक सिमेट्रिक मैट्रिक्स. दिस इज आल्सो related about the formation of the symmetric and skew symmetric matrices. Let C is equal to A minus AT, then CT is equal to A minus AT whole power T. It will become AT minus ATT. It will become AT minus A. Then take negative sign common. It will become A minus AT, and A minus AT is here our matrix C. इसको हम C से डिनोट कर रहे हैं. Then it will become equal to minus C. So CT is equal to minus C. Hence C is skew symmetric matrix. C is skew symmetric matrix. अब एक एक्सरसाइज आपको दे रहा हूं. मीनवाइल एक मैट्रिक्स आपको दिखवा रहा हूं. आप उससे एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए. एक स्क्यू मैट्रिक्स बनाकर मुझे लिखवाएं. मैं देखूं क्या आपका वो जो मेरा है. क्यों भाई, मैं लिख लूं फिर आपको मेंशन करता हूं. ओके सर. लिखे मैट्रिक्स ए ऑर्डर 3x3 का. लिखिए फर्स्ट रो, राइट डाउन फर्स्ट रो 1 minus 2 3 9 5 minus 1 0 minus 3 7. Please do listen again. First row 1 minus 2 3. Second row 9 5 minus 1. Third row 0 minus 3 7. आप सब लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए. देखते हैं कौन ठीक बनाता है. जी, जो बच्चा बना ले मुझे चेक करवाए, मुझे बोले बताए, तो मैं फिर बताता हूँ कि उसका ठीक है या नहीं. जी सर जो इसमें ए वाला सर, मैट्रिक्स आ रहा है वो आ रहा है -1 एक सेकंड मुझे फाइनल रिजल्ट चाहिए. इस बच्चे ने फाइनल रिजल्ट बना लिया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी. वो बोले कि उसका सी किसके बराबर आ रहा है. फिर सुने मेरी बात कि मैंने तरीका आपको बता दी है, पीछे एग्जाम्पल भी बता दी है. मैंने एक मैट्रिक्स ए आपको दिया है.
I have asked you to make the matrix which is skew symmetric matrix. तो सी मैट्रिक्स जिसने बना लिया है वो बोले कि उसका मैट्रिक्स सी क्या आया। जी, इतना मुश्किल काम तो नहीं दिया मैंने। सर ये एनीबॉडी इन द क्लास प्लीज। सर दिया है देखो एक बच्चा जिसने पूरा निकाल लिया है वो बोले। सर सी आया उसके पास रो है 0। मैट्रिक्स क्या 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 आया जी, बोलो भाई। हेलो सर 0 हाँ जी, कोई बच्चा मुझे बताए। 0 -11 जी 3 जी, यार आप करके बताओ मुझे, सर जल्दी जल्दी बोलो। उसकी सेकंड रो है 0 -11 3 सेकंड रो 11 0 2 जी -3 थर्ड -2 रो 0 -3 -2 0 योर नेम प्लीज, योर नेम प्लीज। हमाद हसन, आपका बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक स्क्यू सिमेट्रिक बनाया है। यस सर। सब बच्चे नोट कर लो, मैं लिखवाने लगा हूँ। फर्स्ट रो 0 -11 3, सेकेंड रो 11 0 2, थर्ड रो -3 -2 0। अब बेटा जी हमाद हसन एक और बात करो, इसका ट्रांसपोज कर लिया सर। सी नहीं, सी को चेक करो, क्या वाकई ये स्क्यू सिमेट्रिक बनता है। सी को मैंने तो चेक कर लिया है, स्क्यू सिमेट्रिक है। आप भी चेक कर लो कि क्या वाकई ये स्क्यू सिमेट्रिक ही बन रहा है। ये भी तो चेक करना जरूरी है। सर कर लिया, ये भी कर लिया, ओके। हाँ, और फिर माइनस कॉमन लिया। यस सर। तो वही मैट्रिक्स आ गया। तो चलो बच्चों, इसी का आप घर जाकर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बना लेना। इसी का ये एक एक्सरसाइज होगी, एक एक्टिविटी हो गई क्लास के अंदर। वी हैव डन सम एक्सरसाइज। नाउ लेट अस सी थ्योरम ए। नाउ लेट अस सी थ्योरम 6। सॉरी, let A, capital B be the two square matrices of the same order. Then first result is AH is equal to A. आगे ब्रैकेट में C in the or within the brackets, H stands for Hermitian. H stands for Hermitian matrix. हर्मिशियन को हम डिफाइन कर चुके हैं। तो हर्मिशियन ऑफ ए हर्मिशियन इज ए मैट्रिक्स इटसेल्फ। वो आपको बताना ये चाह रहा है, रिमाइंड ये करवाना चाह रहा है, जैसे ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज ए मैट्रिक्स इटसेल्फ, सिमिलरली हर्मिशियन ऑफ ए हर्मिशियन इज ए मैट्रिक्स इटसेल्फ। दो दफ़ा एच आ जाए तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास वही मैट्रिक्स ए आ जाता है। राइट, द सेकेंड रिजल्ट इज ए प्लस माइनस बी होल पावर एच। तो ये देखें, ए एच प्लस माइनस बी एच, इसका मतलब ये है कि पहले ए बी को जमा करके हर्मिशियन लो, या अलग-अलग दोनों का हर्मिशियन लेने के बाद आप ऐड कर लो, या पहले दोनों को माइनस करने के बाद हर्मिशियन लो, या दोनों का अलग-अलग हर्मिशियन लेने के बाद टेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू ए एच एंड बी एच, ए एच प्लस बी एच, ए एच माइनस बी एच सेपरेटली यू विल टेक एंड यू विल सी, यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स। बताना आपको ये चाह रहा है कि आप सेम रिजल्ट गेट करोगे कि ए प्लस बी एच इज इक्वल टू ए एच प्लस बी एच and a minus b whole power h is equal to ah minus bh, where h stands for Hermitian matrix. okay, yes. Then c times a, where c is any constant number,
CA होल पावर H C times AH. बताना आपको वो he wants to tell you that H will apply only on the matrix, not on the given constant which is multiplied by. इससे मुराद ये है कि अगर कोई नंबर आप पहले ए से मल्टीप्लाई करके फिर हर्मिशियन लो या हर्मिशियन लेने के बाद में उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट, दैट इज C times A whole power H is equal to C times A power H, Hermitian of A. Then last, which is very important, ABH. ABR, where AB are two matrices conformable for multiplication, वो आपको बताना ये चाह रहा है कि आप पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उनका H लें या अलग-अलग दोनों के लेकर और फिर मल्टीप्लाई करें, बट मल्टीप्लाई इन दी नॉट इन द सेम ऑर्डर. ABH इज इक्वल टू BHAH. आप FSC में पढ़ चुके हो, ये बिल्कुल वैसे ही है. AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स एंड AB whole power T transpose is equal to BT into AT. AB whole power T is equal to BT into AT. So now remember this law for Hermitian also. AB power H is equal to BHAH, left for the readers. Proofs are left for the readers. आपको प्रूफ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. हमने जो प्रूफ इधर नहीं दिए वो आपसे नहीं पूछेंगे, जो प्रूफ इधर दिए हैं वो आपसे पूछेंगे. अब हम आगे चलते हैं. आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है, इनको घर में करना है. नो लेट अस सी. आपकी आ गई एक्सरसाइज 1, पेज 8B, एक्सरसाइज 1. तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है. Just for your practice, A, B are two given matrices of order 3 by 3. Then you have to find number 1 A plus B, sum of these two, then difference of these two, then the sum of 2A plus 3B, then the difference of 3A 5B, then AB, then BA product. And at the end he is asking you that is AB is equal to BA. यानी हमने जब AB और BA निकालना है, when we have find out AB and BA, then we have to check that whether AB is equal to BA. तो now let us see कि एक पार्ट में आपके लिए गालबन 3A minus 5B वाला कर रहा हूँ, एक दो पार्ट मैं कर रहा हूँ, बाकी लेफ्ट फॉर योर एक्सरसाइज. A is this and 3A is taking by multiplying each entry inside by 3. 6 minus 9 minus 15 minus 3 12 15 3 minus 9 minus 12. तो ये आपका 3A आ गया. सिमिलरली यू कैन फाइंड 5B. तो B है आपका, B गिवन है -1 3 5, 1 -3 -5 and -1 3 3. So 5B, each entry is multiplied by 5 for getting 5B. So here it is before you, this is 5B. Now let us take the difference of these two. तो अब ये माइनस आप अंदर ले जाइए, तो here will be plus and all the entries will change their signs. It will become first column 5 minus 5 5, second column minus 15 15 minus 15, third column minus 25 25 minus 15. Each entry has the negative sign. तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाएंगे. अब आप इनको ऐड कर लीजिए 3A में, तो फाइनल रिजल्ट विल बिकम एज
3a minus 5b will be 11 minus 24 minus 40 minus 8, 27, 48 minus 24 minus 27. So this is the sum before you, 3a minus 5b. Now 5, part 5 is the product of these two, ab. You see the whole detail is given. 2 is to minus 1, minus 3 is to 1, minus 5 is to minus 1. Rotating all the 3 rows of A and multiplying one by one these rows by the first column, fixing the first column, rotating all the 3 rows, we get the first column of AB. AB के आफ्टर प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम जो हम गेट कर रहे हैं, -2 -3 +5 1 +4 -5 -1 -3 +4. Similarly, we are getting the other two columns, the second column and third column before you. You can well see and check yourself. Then after simplification, we will get first row 0 0 10, second row 0 0 -10, third row 0 0 8. Two columns consist of 0 entries. The last column is non-zero column consisting of entries 10 -10 8. Now let us take BA. As you have taken AB in the similar manner you can take BA. So BA में first two rows 0 0 आ गई. Then the third row is -2 6 8. The result is quite obvious that AB is not equal to BA. From the result, it is very clear that the commutative law does not hold here. Okay. The other parts student will do themselves. जो पार्ट मैंने आपको नहीं जी जी सर वो जो ऊपर आपने हरमिशन वाला करवाया उसमें ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता था? कम्यूटेटिव तो किसी में भी होल्ड नहीं करेगा, इन जनरल तो किसी में नहीं करेगा. अगर कम्यूटेटिव होल्ड करता होता फिर तो ए बी एच आ जाता, ए एच बी एच. ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि ए बी एच बराबर हो जाता बी एच ए एच और बी ए एच बराबर होता बी एच ए एच, तो बराबर आ जाते, लेकिन वो तो नहीं है इन जनरल. ठीक है, रेसिप्रोकल ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आ जाएगा. हरमिशियन का क्वेश्चन भी कोई ना कोई मैंने दिया होगा एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 2 है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिक्स इवैल्यूएट. ये तो भाई बहुत आसान है, यू विल डू योरसेल्फ, आप खुद करोगे जवाब आपके सामने. सेकंड देखें आप, एक्स वाई जेड ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी. The third matrix is X, Y, Z. The first matrix consists of only one row. The second matrix of order 3 by 3, 3 row 3 column, and the last is consists of only one column. तो जो पहला मैट्रिक्स है इसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं इस मैट्रिक्स को? सर रो मैट्रिक्स. जी, रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स कहना ज्यादा सही नहीं है, मैंने इसका सही नाम आपको बताया है, कोई बच्चा मुझे बताए. रो वेक्टर. Yes, no, you people are right. It is a row vector, and the last is known as column vector. The last column vector. It is known as column vector. तो तीनों की मल्टीप्लिकेशन हमने एंड व्हाट रिजल्ट वी आर गेटिंग. सबसे पहले ये चेक करेंगे आप कि क्या पहले दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं. क्यों भाई, क्या चेक करते हैं? लेट टेल मी. पहले के कॉलम दूसरे के रोज. पहले कॉलम दूसरे के रोज. जी, पहले के कॉलम कितने हैं? पहले के कितने कॉलम हैं? सर 3.
पहले के कितने कॉलम हैं? 3। दूसरे की रोज कितनी है? सर 3। 3। दूसरे की रोज कितनी है? 3 रोज। तो वी आर एबल टू मल्टीप्लाई these first two matrices are conformable for multiplication। तो ये आएगा ax प्लस बी वाई प्लस जी जेड, सेकेंड एलिमेंट एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, थर्ड जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, and again it is multiplied by the last column vector। तो अब देखें क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं? फर्स्ट में 3 कॉलम, सेकंड में 3 रो। फर्स्ट का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 और सेकंड का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। तो हमारे पास the matrix after product we will get will have the order 1 क्रॉस 1। सिर्फ एक एंट्री होगी, एक रो एक कॉलम, ओनली कंसिस्ट ऑफ 1 एंट्री। तो आप वो देखें कि वो क्या बनेगा। वो बनेगा x इंटू ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, बी वाई प्लस जी जेड, वाट एवर इट इज भाई, एच वाई है। तो प्लस y इंटू एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड प्लस z इज टू जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड। तो अब एंड पे आप देखें कि मल्टीप्लाई भी किया और टर्म्स को अरेंज भी किया और जिनमें 2 कॉमन था 2 कॉमन भी ले लिया। तो फाइनल रिजल्ट यू विल गेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एच एक्स वाई प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड एक्स। तो ये है आपका रिजल्ट। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे करने लगा हूँ, आप में से कोई बच्चा मुझे, एनीबॉडी कैन आंसर, क्या हम ये भी कर सकते हैं कि हम दूसरे और तीसरे को पहले मल्टीप्लाई करें और बाद में 1 के साथ इसके प्रोडक्ट ले लें? क्या ऐसा पॉसिबल है? यस सर पॉसिबल। कोई बच्चा मुझे जवाब दे। क्यों पॉसिबल, क्यों पॉसिबल है? अब इसका जवाब मुझे सुनो भाई, जस्ट लिसन टू मी। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछ रहा हूँ जो कि इंटरव्यू में बच्चों से हम पूछते हैं। ठीक है पॉसिबल है, ये बताएं कि सेम रिजल्ट गेट करेंगे हम, एंड पे सेम रिजल्ट गेट करेंगे? क्यों भाई? यस सर। नो सर। सेम रिजल्ट गेट करेंगे या डिफरेंट रिजल्ट गेट करेंगे? सर डिफरेंट रिजल्ट होगा। different होगा। यू आर रॉन्ग, सर सेम यू आर रॉन्ग। Different सेम रिजल्ट। जो बच्चे सेम रिजल्ट कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। सही अब ABC मुझे एक बात का जवाब दें, एक बात का जवाब दें कि क्यों ऐसा पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल है? अंडर विच लॉ? सही एसोसिएटिव लॉ पर। यस, आप दोनों का आंसर बिल्कुल। ये कौन बोल रहा है भाई? नो डिस्टर्बेंस प्लीज। ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। हम ए बी को ब्रैकेट में ले लें, बाहर सी ले लें, या हम बी सी को ब्रैकेट के अंदर ले लें, बाहर ए ले लें, तो दोनों बराबर होंगे। यानी ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो इस वजह से सेम रिजल्ट आएगा। इन आइदर वे वी विल डू इट। ओके जी, समझ आ गई सबको? नो। नेक्स्ट है कि हमने थर्ड में ये शो करना है कि इसका स्क्वायर ये आएगा, तो आप शो कर लीजिएगा। अगर नहीं पता चलेगा तो मैं बता दूंगा, अगर नहीं पता चलेगा तो मुझे बता दीजिए कि सर थर्ड पार्ट ठीक नहीं है आपका। बहुत सिंपल, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। फोर्थ पार्ट आप देखो, फोर्थ पार्ट है, इसी में थर्ड भी कवर हो रहा है क्योंकि उसी का हम क्यूब ले रहे हैं। तो लेट ए इज इक्वल टू 1 2 माइनस 3। ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ए स्क्वायर आ गया 9 माइनस 4 माइनस 8 17।
बहुत सिंपल सा रिजल्ट है, ऑर्डर 2 by 2 का मैट्रिक्स है। तो अब हमने ए क्यूब लेना है और वो हमने देखना है किसके बराबर आया। तो ए क्यूब किसके बराबर होता है, या ए इंटू ए स्क्वायर लेंगे या ए स्क्वायर इंटू ए लेंगे, जिस तरह भी ले लें यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो ए क्यूब आएगा ए स्क्वायर इंटू ए, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी -7 30 60 -67। घर जाके कीजिए, मेरा ये काम देखे बगैर आप करें। डू योर सेल्फ विदाउट लुकिंग इनटू माय नोट्स एंड देन कंपेयर द फाइनल रिजल्ट्स। अगर आपका यही आ जाए तो फिर ठीक है, अगर आप सबका यही आ जाए तो मेरा रिजल्ट ठीक है। अगर आपका आपस में डिफर कर जाए तो फिर आप देखो कि गलती किसकी है। और अगर आपको बार बार करने के बावजूद नोट्सों में मेरी कोई गलती नज़र आती है तो प्लीज़ डू ब्रिंग इट इनटू माय नोटिस, प्लीज़ डू ब्रिंग इट इनटू माय नोटिस। नो 5 पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 वी हैव टू प्रूव दैट कि इसका स्क्वायर जो है वो i3 के बराबर है। ठीक है, इसका जो स्क्वायर है वो i3 के बराबर है और इसका क्यूब भी निकालना है। नेक्स्ट में इसका क्यूब भी निकालना है। तो पांचवा पार्ट चूंकि इसी में कवर हो जाता है, लिहाजा पांचवा मैंने छोड़ दिया है, इंडिपेंडेंट उसका प्रूफ नहीं दिया। तो a इंटू ए स्क्वायर आपका आ गया 100 010 001, यानी ए स्क्वायर आ गया i3 के बराबर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3। अब आपने A3 निकालना है, तो A3 आ गया 100 010 001। और दूसरा मैट्रिक्स जो A है वो है -1 -1 -1 010 001। ये पेज इसको 9C भी कह सकते हो और 36 भी कह सकते हो। ये पेज 36 भी है और 9C भी इसको कह सकते हो। तो A3 हम देखते हैं क्या आया। तो A3 आया -1 -1 -1 010 001। और वैसे भी अगर ये डिटेल हम ना भी दें तो याद रखना ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब भी किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उसी ऑर्डर के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका आ जाएगा सेम मैट्रिक्स, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो आप ये रूल लिख लीजिए, ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो ये है जनाब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ज़रा तवज्जो से देखिए कि उसमें वो कह रहा है कि यू हैव टू प्रूव दैट टू मैट्रिसेस आर गिवन, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस 0। कब अंडर विच कंडीशन द प्रोडक्ट बिकम इक्वल टू 0, व्हेन थीटा एंड फाई will differ by an odd multiple of pi by 2, is 0 matrix when theta and pi differ by an odd multiple of pi by 2। अब मुझे ये बताइए कि do all the student, is every student in the class know about the values of the trigonometric function from 0 to 90, 0, 30, 45, Yes, sir. 60, 90. All the major angles 0, 30, 45, 60, 90. What is the values of cosines of these angles? And what is the values of sines of these angles? And what is the values of tangent of sine, पहले sine फिर cos फिर tangent।
तो ये एक ही टेबल में ये सारी वैल्यूज आनी चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। नो वी कम टू आते आवर हैं सर। क्वेश्चन अंडर डिस्कशन। जी जी दोबारा पूछें, क्या आप पूछ रहे हैं? कुछ नहीं सर। अरे कुछ नहीं सर कुछ। चले चले, ओके ओके। ए बी को मैंने साइड बाय साइड आई हैव रिटन मैट्रिक्स वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए cos square theta, cos theta sin theta, cos theta sin theta, sin square theta, and the all the entries of B, which is in the terms of phi, cos square phi, cos phi sin phi, cos phi sin phi, sin square phi. After multiplication and taking common, what we get? First entry में there is a common cos theta cos phi, cos theta cos phi. So inside you are left with cos theta cos phi plus sin theta sin phi. Similarly, in the second entry, when you take cos theta sin phi as common, you will get cos theta cos phi plus sin theta sin phi. And similarly, third entry and fourth entry, you are taking common. Now, formula cos alpha minus beta is equal to cos alpha cos beta minus sin alpha sin. Cos alpha minus beta is equal to, cos alpha minus beta is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta, and cos alpha plus beta is equal to cos alpha cos beta minus sin alpha. ये दरमियान वाला माइनस चेंज हो जाता है अगर साइन अल्फा प्लस बीटा है तो प्लस ही रहेगा, साइन अल्फा माइनस बीटा है तो माइनस ही रहेगा। सर आपका माइक म्यूट हो गया। नो अब समझ आ रही है? डू यू लिसन मी? हेलो? यस सर। ठीक है, तो ये देखें कि cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई सब जगह ये बन जाएगा cos थीटा माइनस फाई। और चूंकि इस मैट्रिक्स की हर एंट्री में cos थीटा माइनस फाई आ रहा है तो वी कैन टेक इट एज ए कॉमन आउटसाइड। cos थीटा माइनस फाई मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया cos थीटा cos फाई, cos थीटा sin फाई, sin थीटा cos फाई, sin थीटा sin फाई, एंड इट विल बी इक्वल टू जीरो। ये कब जीरो होगा? जबकि ये बाहर वाला जीरो हो जाए। दिस होल विल बी इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ cos थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू जीरो। और थीटा माइनस फाई जीरो कब होगा? जब थीटा माइनस फाई 90 डिग्री हो जाए या मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, या 90 डिग्री या इवन नहीं, दोबारा सुने, ऑड मल्टीपल। तो याद रखना इवन नंबर को हम लेते हैं, इवन नंबर को हम डिफाइन करते हैं एवरी नंबर डिविजिबल बाय 2, और ऑड नंबर को हम डिफाइन करते हैं ऑल दी नंबर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो डिविजिबल बाय 2 जो नंबर होते हैं इवन, उसको हम इन द लैंग्वेज ऑफ अलजेब्रा 2n से डिनोट करते हैं, और ऑड नंबर को 2n+1 से
where n is an integer, n is an integer। तो जब जीरो रखो तो 1 आ जाएगा, 1 रखो तो ये 3π/2 बनेगा, 2 रखो तो 5π/2, यानी ऑड मल्टीपल, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इवन से नहीं, क्योंकि cos 90 0 होता है, फिर cos 180 0 नहीं होता। cos देखिए cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, cos 180 -1 हो जाता है, cos 180 -1 हो जाता है। इसीलिए हम इधर कंडीशन लगा रहे हैं ऑड मल्टीपल की, तो थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू 2n + 1π/2। तो ये हो गया दे डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, दे डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ये घर जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, खासी डिटेल मैंने आपको बता दी है, भी दिया है as cos π/2 is equal to 0, so all the odd multiple of π/2 of cos will produce 0 result। ये इसकी डिटेल भी लिखती है। अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, the direction cosines are two lines are left सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। anybody can answer। क्यों भाई बच्चों? हेलो सर अब आवाज आ रही है। सबकी अच्छा। आवाज भाई है। सर तो पहले कोई मेरा आपकी आवाज नहीं थी यार। नेट तो मेरा ठीक आ रहा है, चलो डजंट मैटर। तो ये मुझे बताइए कि ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, जो हम इधर ये लफ्ज यूज कर रहे हैं कि आर, यानी डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं, ये देखिए ना, ये मैंने इधर लिखा हुआ है, इफ λ1 λ2 λ3 एंड μ1 μ2 μ3 are the direction cosines of the two lines respectively। ये जिस तरह बच्चों हम स्लोप लेते हैं 2 डायमेंशन में, तो हमें पता चल जाता है कि किसी भी लाइन की पोजीशन क्या है। इसी तरह 3 डायमेंशन क्या होता है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ये बच्चों को समझाने के लिए, आप लोग फिजिक्स पढ़ चुके हो, उसमें वेक्टर में आपके टीचरों ने आपको आई जे के वेक्टर, यूनिट वेक्टर बताए होंगे। I is along x axis, j is along y axis and k is along z axis। तो उसमें 3 एक्सिस आ जाते हैं, और कॉर्नर ऑफ ए रूम की एग्जांपल दे के आपको समझाए होंगे, आप रिकॉल करो। इसी तरह 2 लाइनें अगर हम लेते हैं किस में, 3 डायमेंशन में, और एक के डायरेक्शन कोसाइन है λ1 λ2 λ3, और दूसरे के डायरेक्शन कोसाइंस हैं μ1 μ2 μ3, तो ये दोनों कब परपेंडिकुलर होंगी? कंडीशन क्या है परपेंडिकुलरिटी की, कि λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3 बराबर 0 के हो जाए, तो 2 लाइनें परपेंडिकुलर हो जाएंगी। अगर ये 0 हो तो 2 लाइनें परपेंडिकुलर होंगी। अगर 2 लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो डेफिनेटली इनका सम ऑफ प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा। अब मुझे ये बताइए
कि 2 डायमेंशन में 2 लाइनों के परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन है? कोई बच्चा बताए। λ1 μ1 plus λ2 μ2 is equal to 0. नो नो लैम्डा नो 1 म्यू 1 नो प्लस नो लैम्डा नो 2 नो नो नो, उधर लैम्डा किधर से आ गया? उधर लैम्डा म्यू किधर से आ गए? गलत बता रहे हैं आप। सोचें सोचें, स्ट्रेट लाइन आप पढ़ चुके हो, स्ट्रेट लाइन इन 2 डायमेंशन आप पढ़ चुके हो। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? I plus भैया I plus y plus j is equal to 0. no no, why you are going into ij? I am not talking about vectors, I am just simply talking about straight line, general equation of a straight line. Anybody can tell me what is the general equation of a straight line? याद रखना, ax plus by plus c is equal to 0. ax plus by plus c is equal to 0. FSC में एक थ्योरम है कि any linear equation in xy always represent a straight line. Any linear equation in xy like ax plus by plus c is equal to 0 always represent a straight line. तो जनाब उसमें टू डायमेंशन में कंडीशन है कि एक की स्लोप L1 की स्लोप M1 है और स्लोप ऑफ L2 is M2, then the two lines are parallel if M1 is equal to M2 and the two lines are perpendicular if M1 into M2 is equal to -1. If the product of two slopes is equal to -1, then the two lines are perpendicular. अगर एक लाइन की स्लोप 2 है और दूसरी की -1/2 है तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि 2 इंटू -1/2 -1 आ रहा है। तो अब आपको मैंने ये पिछला जो पढ़ा है उसकी रिवीजन करवा दी है। तो इधर कंडीशन है इन द 3 डायमेंशन, द कंडीशन इज λ1 μ1 plus λ2 μ2 plus λ3 μ3 is equal to 0. Now we take the product of these two. तो मैंने सिर्फ इधर जगह की वजह से सिर्फ पहला कॉलम लिया है। आप इम्तिहान में भी सारे कॉलम लिखोगे, सारे कॉलम लोगे, घर जाके आपका आज का होमवर्क इज दैट यू विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन ऑल रेस्पेक्ट्स, यू विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन ऑल रेस्पेक्ट्स। तो ए बी मैं ओनली फर्स्ट कॉलम ले रहा हूँ और फर्स्ट कॉलम में आप देखो तो जब आप λ1 μ1 λ2 μ1 λ3 μ1 यानी पहला जो प्रोडक्ट है उसमें कॉमन है λ1 μ1, दूसरे में कॉमन है λ2 μ1, तीसरे में कॉमन है λ3 μ1। तो अब आपके पास अंदर आ जाएगा λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3। ये प्लस ठीक तरह पढ़ा नहीं जा रहा, सब जगह प्लस है, कीप इन माइंड। मैं अगेन इसको रिसाइटिंग इट, λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3। अब आप चूंकि हर एंट्री में ये कॉमन आएगा आप सारी लेंगे। मैंने इधर सेकंड कॉलम नहीं लिया, थर्ड कॉलम नहीं लिया। आप देखोगे कि अब आपका कॉमन लेने के बाद जो मैट्रिसेस अंदर आएगा वो कौन सा आएगा? λ1 μ1 λ1 μ2 λ1 μ3 λ2 μ1 λ2 μ2 λ2 μ3। Similarly, third is λ3 μ1 λ3 μ2 λ3 μ3। देखिए भाई आपस में इसको ये थोड़ा सा इधर आपको निशान नजर आ रहे हैं, डोंट कंसिडर दीज। फर्स्ट कॉलम है λ1 μ1 λ2 μ1 λ3 μ1, सेकंड कॉलम है λ1 μ2 λ2 μ2 λ3 μ2, थर्ड कॉलम है λ1 μ3 λ2 μ3 λ3 μ3।
तो अब ये कब जीरो होगा? अगर ये बाहर वाला जीरो हो जाए। तो बाहर वाला क्या है? लैम्डा 1, दिस इज जीरो इफ एंड ओनली इफ लैम्डा 1 म्यू 1 प्लस लैम्डा 2 म्यू 2 plus lambda 3 mu 3 is equal to 0, and it is only possible when the two straight line are perpendicular to each other. So very important question, ये मैंने आपको करवा दिया है, घर जाके इसको डिटेल से आप कीजिए। आपके सर जी काफी याद करिए। सर आपका माइक म्यूट पे चला, अनम्यूट कर लें सर। शुरू में सबको अटेंडी नहीं बनाया, इस वजह से ये कोई बच्चा कर रहा है। अब आप बात करें, ये गलत बात है भाई। हाँ जी, आप बताएं क्या बात आप कर रहे थे? जी 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 बोलो। सर आज के सर अब लिए कह रहे हैं बहुत हो कि आज के लिए काफ़ी है। चलो ऑल काफी है राइट, सर। यस सर। ओके ओके ओके, क्यों भाई? ठीक है, तो मीटिंग हम एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, सर अल्लाह हाफिज। सर ये एकदम वो शब्द बता दें जरा, स्ट्रेट लाइन वाला। वो आप पढ़ के आइए, आइंदा फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आप पढ़ के आए। ओके हुसनैन भाई बताओ यार, स्ट्रेट लाइन कैसे होएगी? यार स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देखो ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। यार सर ने अटेंडेंस ली है आज? दोबारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन होती है। इसको फिर स्लोप जब निकालते हैं वो पता ना आपको, वाई इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, ठीक ऐसे ठीक है। निकालते थे। 7-8 में भी पढ़ा है ये सब। फिर आगे कुछ और इक्वेशंस हैं, टेंजेंट लाइन इक्वेशंस होती हैं, नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं, वो आपको पता है, पढ़ा हुआ है। अच्छा सैंडविच सर ने अटेंडेंस ले ली है ना? यार पता नहीं सर लेते हैं या नहीं अटेंडेंस। ठीक है यार, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार जवाब इसका क्या, और बस यही है कि इसका और भी कुछ करना है इस क्वेश्चन का? बस इतना ही करना, प्रूव ही करना था, वो शुरू से सर ने बताया प्रूव करना था।